Hello guys, welcome to my channel Success Step Word, who says if you dream it you can do it. So guys, have you ever felt confused while writing words like your and you are, there and there? So many students make mistakes in these words because they sound similar. But today in this video, I'll explain these confusing English words in a very easy way with meanings, tricks and examples. So by the end of this video, your confusion will disappear. So let's start. So the first one is there versus they are. So first, let's learn three very confusing words. All three words sound similar, but their meanings are completely different. So first one is there. The spelling of this word is T-H-E-I-R. So this word shows possession or belonging. It tells us that something belongs to some people. Clear? Example, their classroom is clean, meaning the classroom belongs to them. Their parents came to school. In this, the meaning of there is the parents belong to them. It shows possession. In Hindi, the meaning of there is unka. Their classroom is clean. उनकी classroom clean है. Their parents came to school. उनके parents school आए हैं. Clear? Next is there. The spelling is T-H-E-R-E. Mostly students THEIR and THERE में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट क्लियरली दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. THEIR शोज पोजेशन कि आप वो जो भी चीज़ है वो उनकी है, कुछ सम पीपल की है. क्लियर? एंड THERE इज अ डिफरेंट वर्ड. इट टेल्स अबाउट अ प्लेस और पोजिशन. वहाँ. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन हिंदी इज वहाँ. द बॉल इज देयर. बॉल वहाँ पर है. द बॉल इज एट दैट प्लेस. There is a cat under the table. Here there introduces something. Clear? कि वहाँ पर एक cat है टेबल के नीचे. So these are two different words. There contains the word here. Both are related to place. Here means यहाँ, there means वहाँ. Clear? The third one is they apostrophe re. दे आर. जहाँ पर भी आपको अपोस्ट्रोफी आर ई दिखता है, इट मीन्स वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है साथ में, उसको कॉन्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया गया है, आर लिखा गया है साथ में. क्लियर? सो इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे आर. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. सो वेन एवर यू सी एन अपोस्ट्रोफी इन दे apostrophe re, remember it is a short form. Clear? Like it apostrophe s. The meaning of this word is it is. Now quick comparison, listen carefully. Clear? Their bags are there because they are going home. In this sentence I have used all three words. First THEIR, second THERE, and third is they apostrophe re. The meaning of first there is unka bag. Clear? It shows possession. The meaning of next there is वहाँ. Place, it is showing place कि उनका बैग वहाँ पर है. क्यों है वहाँ पर? Because they are going home. It is contraction of they are. So their bag are there because they are going home. उनके बैग वहाँ पर है क्योंकि वो घर जा रहे हैं. Clear? Now let's learn another confusing pair, which is your versus you are. So the first one is your. YOUR. Your shows that something belongs to you. It is as similar as their. THEIR. It also shows possession. Clear? Example, your shoes are dirty. तुम्हारे shoes dirty है. The meaning of their is उनके and the meaning of your is तुम्हारे. What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? In both sentences something belongs to you. तुम्हें belong करती है कोई चीज़, यानी कि कोई चीज़ तुम्हारी है. जैसे shoes तुम्हारे हैं, नाम तुम्हारा है. Clear? The next one is same. You apostrophe re. I have told you before. जहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी आर ई दिखे, इट मीन्स वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है आर. सो यू अपोस्ट्रोफी आर ई मीन्स यू आर. एग्जाम्पल, यू आर वेरी काइंड. यू आर लेट टुडे. तुम बहुत दयालु हो और तुम आज लेट हो. सो द नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर इज टू वर्सेस टू. क्लियर? सो द फर्स्ट वन इज TO2. दीज थ्री वर्ड्स आर एक्सट्रीमली कॉमन. बहुत बार यूज़ होते हैं ये और बहुत बार आप गलत यूज़ कर देते हो इन्हें. So TO is used for direction. First for direction, like I am going to school. मैं कहाँ जा रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ. एक तरह से तरफ शो करने के लिए कि मैं उस तरफ जा रही हूँ. I am going to the market. Next, it is used with a verb. Like she likes to sing. Here sing is a verb. गाना कोई एक्शन है ये. क्लियर? उससे पहले यूज हुआ है to.
विद अ वर्ब, क्लियर। सो ये दो तरह से यूज होता है, एक तो डायरेक्शन शो करने के लिए, दूसरा वर्ब से पहले यूज होता है, लाइक आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू सिंग। नेक्स्ट इज TOO मीन्स, इसका मतलब होता है, पहला मीनिंग है इसका ऑल्सो, भी। आई वॉन्ट आइसक्रीम टू, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए, क्लियर। सेकेंड है वेरी मच, द बैग इज टू हैवी, बैग बहुत ज़्यादा हैवी है। तो पहला ये दिखाता है भी को, क्यों मुझे ये भी चाहिए, एंड आई वॉन्ट दिस टू, क्लियर। और दूसरा ये दिखाता है बहुत ज़्यादा को, जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोलनी हो, लाइक द बैग इज़ टू हैवी, बैग बहुत ज़्यादा हैवी है। नेक्स्ट इज TWO, ये बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। इट शोज अ नंबर, इट इज़ सिंपली अ नंबर, क्लियर। आई हैव 2 ब्रदर, शी बोट 2 पेन्स, तो मेरे पास 2 ब्रदर हैं, उसने 2 पेन खरीदे, क्लियर, इन दिस वे। सो आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज इट्स एंड इट अपोस्ट्रोफी एस, आप समझ ही गए होंगे। पहला है इट्स जो पोजेशन को शो करता है, दूसरा है इट अपोस्ट्रोफी एस जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी के साथ SREVE ये वर्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जुड़ा होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, क्लियर। कॉन्ट्रैक्शन मीन शॉर्ट फॉर्म। सो दिस पेयर कन्फ्यूजेज इवन ओल्डर स्टूडेंट्स एज वेल। सो फर्स्ट वन इज इट्स, ITS, इट शोज पोजेशन। द कैट लिक्ड इट्स पॉ, कैट ने अपने पंजे को लिक कर लिया। द ट्री लोस्ट इट्स लीव्स, ट्री ने अपने जो लीव्स हैं वो लोस्ट कर दिए, यानी कि झड़ गए पत्ते उसके। सो in the first sentence the paw belongs to the cat, and the second sentence the leaves belong to the tree, clear. Next is it apostrophe S, it means obviously it is. So it's sunny today, it is sunny today. It's time to study, it is time to study. Next is then, THEN वर्सेस देन। इनकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, लेकिन लोग इन्हें कई बार सेम बोल देते हैं, बट इनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट वाला बहुत प्रेशर से आता है देन, और सेकंड वाला दैन है, क्लियर। सो मैनी स्टूडेंट्स मिक्स दीज वर्ड्स वाइल राइटिंग सेंटेंसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, सिर्फ एक वॉल का डिफरेंस है, तो कई बार स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर देते हैं। सो फर्स्ट वन इज विद ई, इज कनेक्टेड विद टाइम और सीक्वेंस। लाइक इसका मतलब है जब आप एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन कर रहे हो तो आप यूज़ करते हो, लाइक फर्स्ट आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, देन आई विल गो टू प्ले, और फर्स्ट आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, देन आई विल गो टू प्ले, क्लियर। तो पहले मैं अपना होमवर्क करूँगा और फिर मैं खेलने जाऊँगा। फिर हिंदी में इसका मीनिंग है फिर। एग्जाम्पल, फर्स्ट फिनिश होमवर्क देन वॉच TV, पहले होमवर्क फिनिश करो फिर TV देखना। आई वेंट होम, मैं घर गया, देन आई स्लेप्ट, फिर मैं सो गया। तो फिर एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन होता है तब आप देन यूज़ करते हो, THEN वाला। नेक्स्ट इज THAN, इसको आप यूज़ करते हो कंपैरिजन के लिए, क्लियर। इट इज़ यूज फॉर कंपैरिजन। एग्जाम्पल, रिया इज टोलर देन मीरा, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंस में है, बड़ी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, कुछ भी है, तब हम THAN देन का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री अगर आपने की हो, एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये वही वर्ड है, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है देन, कंपैरिजन के लिए, क्लियर। रिया इज टोलर देन मीरा, रिया मीरा से लंबी है। टी इज हेल्दियर देन कोल्ड ड्रिंक्स, जो टी है वो कोल्ड ड्रिंक से हेल्दी होती है, क्लियर। नेक्स्ट इज हेयर वर्सेस हेयर, क्लियर। हेयर होता है सुनना और हेयर होता है यहाँ, ठीक है। जैसा मैंने आपको देयर के टाइम पे भी बताया था, देयर होता है वहाँ, हेयर होता है यहाँ। सो बोथ आर यूज फॉर प्लेस और पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, सो फर्स्ट वन इज हियर, स्पेलिंग इज HEAR, इट इज़ रिलेटेड टू साउंड और लिसनिंग, ठीक है। आई कैन हेयर म्यूजिक, डिड यू हेयर द नॉइज, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हियर होता है, लिसन होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, हियर होता है जब आप नॉर्मली कुछ म्यूजिक सुन रहे हो या फिर आती जाती आवाज़ें सुन रहे हो, कुछ सुन रहे हो, और जो लिसन होता है वो होता है जब आप किसी को फोकस करके वही पर्टिकुलर चीज़ सुन रहे हो, लाइक टीचर्स क्लास में बोलती है लिसन टू मी केयरफुली, इन दिस वे जब आप टीचर को ध्यान से सुन रहे हो तब आप लिसन यूज़ करते हो। यहाँ पे हियर वर्ड है, ये भी साउंड के लिए यूज़ होता है। जैसे आई कैन हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ। डिड यू हियर द नॉइज़, क्या तुमने नॉइज़ सुनी, तो इस तरह से आप हियर वर्ड का यूज़ करते हो। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे, इसकी एक ट्रिक है, देखो HEAR, अगर हम H को हटा दें तो इसमें EAR बचता है, विच इज़ ईयर, और ईयर हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन है, सुनने का। नेक्स्ट इज हेयर, HERE, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इट मीन्स दिस प्लेस, ये वाली प्लेस, यहाँ पर। सिट हेयर, यहाँ बैठो। कम हेयर क्विकली, यहाँ आओ जल्दी। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, दोनों की ही प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है काइंड ऑफ, लेकिन स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मीनिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक और वर्ड है इससे रिलेटेड, एक्सपेक्ट,
उसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, लेकिन लोग इन तीनों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट है एक्सेप्ट, ACCEPT। तो एक्सेप्ट का मीनिंग होता है टू रिसीव और अग्री, जैसे किसी बात को मान लेना, ठीक है। जैसे आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, शी एक्सेप्टेड द गिफ्ट। मैं तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट करती हूँ, मान रही हूँ। और शी एक्सेप्टेड द गिफ्ट, उसने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि रिसीव कर लिया, ले लिया। क्लियर। तो एक्सेप्ट होता है जब आप कोई चीज़ रिसीव कर लेते हो, ले लेते हो, मान लेते हो, या फिर आप कोई बात मान लेते हो। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट, EXCEPT। इसका मीनिंग है लीविंग आउट, उसको छोड़ देना। बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है। देखो, फर्स्ट में आप रिसीव कर रहे हो, सेकंड में आप लीविंग आउट, ठीक है। एवरीवन केम एक्सेप्ट अमन, सब आए अमन को छोड़कर। छोड़कर इसकी सेंस है। क्लियर। आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट पपाया, मुझे सारे फ्रूट्स पसंद है लेकिन पपाया को छोड़कर। क्लियर। और जो थर्ड मैंने आपको बताया एक्सपेक्ट, वो होता है एक तरह से किसी से उम्मीद आप रखते हो ना, कि मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, ठीक है। तो जहाँ पे आप किसी से कुछ उम्मीद रखी होती है और आप फिर बोलते हो ना कि मैंने, मतलब आपने वो उम्मीद नहीं की थी, ठीक है, या आपने वो उम्मीद की थी, तो उम्मीद वाली साउंड में एक्सपेक्ट आता है, EXPECT। क्लियर। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगर आप चाहोगे कि आपको ऐसे मोर कंफ्यूजिंग वर्ड्स को स्टडी करना है तो मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम करते हैं क्विज़, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेस्ट योर लर्निंग। सो फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व दिस। आई थिंक आई हैव गिवन इनफ टाइम। अगर अभी भी आपका नहीं हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। सो द फर्स्ट वन इज डैश गोइंग टू स्कूल नाउ। अब देखो यहाँ पे सेंस क्या आ रही है, जो हमारा डैश के बाद फर्स्ट वर्ड है दैट इज आवर एक्शन वर्ब। क्लियर। हमारी मेन वर्ब है। उससे पहले ऑब्वियसली हमारे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा एज सब्जेक्ट, और उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो हम यूज करेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल नाउ, दे अपोस्ट्रोफी RE। क्लियर। दिस इज डैश बैग। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है हमारे पास, क्लियर, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, जो कि यू आर तो नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर होगा योर। दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। आई हैव डैश पेंसिल्स। अब मेरे पास कितनी पेंसिल्स है मुझे वो बताना है। फर्स्ट यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड होता है बहुत ज़्यादा के लिए, लेकिन यहाँ पे टू मैनी होना चाहिए था, उसके साथ हमें एक और वर्ड की हेल्प चाहिए होती। सो मैं बोल सकती हूँ आई हैव 2 पेंसिल्स, यानी कि TWO। क्लियर। डैश गोइंग टू स्कूल विद डैश फ्रेंड्स। अब फर्स्ट वन वही हमारे पास मेन वर्ब दी हुई है, हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, सो हम यूज़ करेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल विद देयर फ्रेंड, उनके दोस्तों के साथ। क्लियर। फिफ्थ इज दिस पेंसिल योर और माइन। ऑब्वियसली यहाँ पे हम माइन का ऑपोजिट यूज़ करेंगे योर। क्लियर। पोजेशन वाला यूज़ करेंगे, पेंसिल तुम्हारी है या मेरी है। आई वॉन्ट डैश बाय डैश चॉकलेट्स। आई वॉन्ट टू बाय, पहले हमारे पास देखो वर्ब आई हुई है, और टू का यूज़ 2 चीज़ों में होता है। फर्स्ट वन इज डायरेक्शन में और दूसरा वर्ब से पहले। बाय एक एक्शन वर्ब है, तो उससे पहले हम TO2 लगाएंगे। आई वॉन्ट टू बाय। अब वो कह रहा है चॉकलेट्स, ऑब्वियसली टू मैनी चाहिए होता हमें, टू मच टू मैनी, तो हम TWO 2 चॉकलेट्स। द डॉग हर्ट डैश लेग बिकॉज डैश रनिंग फास्ट। द डॉग हर्ट इट्स लेग, उसके लेग उसने, ITS वाला विदाउट अपोस्ट्रोफी, बिकॉज इट। अब नेक्स्ट वाला जो डैश है उसमें उससे आगे हमें रनिंग दिया हुआ है विच इज़ मेन वर्ब। क्लियर। तो हमें उससे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और नाउन या प्रोनाउन। तो हम यूज़ करेंगे इट इज़ रनिंग फास्ट, इट इज़, यानी कि इट अपोस्ट्रोफी S। एट्थ इज फिनिश योर होमवर्क डैश यू कैन वॉच TV। अब पहले अपना काम कंप्लीट करो, फिर आप TV देख सकते हो। तो फिर वाले में हमें THEN चाहिए। क्लियर। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, और जो THAN है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज द बॉल इज डैश द टेबल। द बॉल इज, अब यहाँ पे देखो टेबल पर है बॉल, तो टेबल एक पोजीशन हो गई, एक प्लेस हो गई, तो हम लिखेंगे THERE। द बॉल इज देयर ऑन द टेबल आएगा यहाँ पे, तो द बॉल इज देयर ऑन द टेबल, बॉल वहाँ पर है टेबल पर। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज डैश फेवरेट सब्जेक्ट। अब तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो YOUR, यहाँ पे हमें कोई भी प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ है हमारे पास। तो हम लिखेंगे योर, YOUR। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।
ये आपकी क्विज़ थी, एक तरह से प्रैक्टिस थी जो आपने ऊपर समझा था। तो अगर आप कितने क्वेश्चंस इसमें ठीक कर पाए हो और कितने गलत है आपके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं। क्लियर? जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हो। So this is it for today. If you like this video, so do like it and share it as much as you can. Also subscribe the channel if you haven't yet. So we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.